Hi everyone, welcome to my channel. This particular video is very important for all of us. And in this particular video, I want to address actually the aspirants, those who are giving up at this point of time. A lot is being stated, a lot is being expected out of you. That's very true. And definitely the road ahead is not very easy. 45 days to an extent are remaining for CLAT, and apparently everybody is studying as of now. ना पढ़ने वाला भी पढ़ रहा है, पढ़ने वाला पढ़ पढ़ के थक रहा है. The biggest point that I am seeing is the breaking point. मतलब saturation आ चुका है. Most of the aspirants जो day one से preparation कर रहे थे, like they were pretty much serious and adamant about this examination, are right now giving up. There can be n number of reasons for this particular feeling. Two of the primary reasons that I could identify were first that most of the aspirants, those who were damn serious, they are seeing that there is not much scope of improvement in their scores. They are not able to go beyond a certain threshold. They are stuck on that third threshold, and they are not able to scale beyond 60, 70 marks, and they are stuck. And the second possible reason is that apparently everybody is able to score around 40, 50 marks. And whenever we are looking around aspirants, we're talking to other guys, what they are saying is उनका भी 50 नंबर आ रहा है, and 50 marks apparently is easy for them. तो अचानक से आए हुए कॉम्पिटिटर्स रेस में आ चुके हैं, और बहुत समय से जो मेहनत कर रहे थे वो यू नो गिव अप कर रहे हैं. सो like in my class also, I have told my kids, and they know apparently that I have told them about this particular graph that I usually draw. And I tell them often that भाई प्रिपरेशन में अगर हम एक्स और वाई के ग्राफ की बात करें, so there are like two set of aspirants. We have two set of aspirants. One who are preparing from the day one. Now at this particular point they will be falling down, right? And on the other hand, we had the other set of aspirants, other lot that I had, right? And they were like not preparing, not preparing, not preparing, and now they are planning to prepare. And then there are other set of aspirants like who are consistent with their efforts. Number आ रहे नहीं आ रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. So category A, category B, and category C. End तक आपको क्या लगता है who will make it? Category C. So इस समय you got to be emotionless at any cost. You cannot have any sort of emotion. And this particular point where each and every aspirant meets is also October only. We will face an examination in the month of December, right? And the remaining days, that is the remaining 40 to 50 days, is the road. So to understand this, please understand this another graph, जो कि मैंने अपने बहुत बचपन में, when I was in class 7th, I came across a self-help book at that point of time by Anuj Khera, right? Shiv Khera, I guess. I don't even exactly remember the name of the author, but there was this particular graph which actually hit me at that point of time. So he drew a graph and he told, like, what do you do when you get demotivated, right? So he told that initially when you will be taking efforts, you will be seeing results, and after a certain point of time, you will not see any result. There you will hit a plateau where nothing will change. No amount of extra efforts uh, will change, will bring results. And then you hit a trench where you will feel a drop. So this could be emotional drop, this could be mental drop, this could be feeling of FOMO that is pulling you down, weighing you down. But remember that when you are, this is the dip of life. And every successful candidate in their life has experienced this dip of the life. Some experience it earlier, some experience it at a later stage, but everybody experience at one point of time, they do experience this dip in their life. And it is at this particular moment when you do not give up and keep trying, keep repeating the same actions again and again, and ultimately you see the results. And this graph did not make much sense, but it does make sense. It does make sense. And I will also tell you that there is a scientific explanation for this. There is apparent very vivid scientific explanation for this. If you have studied about
the latent heat phenomena. So it's like water boils at 100 degrees Celsius, isn't it? And water also changes into water vapor. Water also changes into water vapor at 100 degrees Celsius. So at 100 degrees Celsius, it exists in the liquid state as well. And at 100 degree Celsius, it exists in the gaseous state as well. But the state has changed at the same temperature. So this extra heat, that the water absorbs from surroundings to change the state is called the latent heat. So whenever you are in the dip, whatever amount of efforts you are putting in to climb out of the dip is basically going to change the state. So this dip of life is where your latent energy comes into picture. And when we're talking about latent energy, I also mean your environmental setup that is there. Your environmental setup with respect to the quality people that you are spending time with, the kind of people you are spending time with. So let's say if you are chasing your examination, so all the people should be your aspirants only. Aspirants with a good feeling, with a healthy feeling. If you do not have that good, all the positive people, those who fill your life with positivity, they should be around. Those could be your mentors as well, your family first. And the second type of environmental setup is what is your mahol at home, right? It must be full of positivity, right? And the environmental setup also means that what are you doing every day? What are your actions every day? So in actions, I simply mean that let's say you did not study for 2 days, there is no study, right? Then on the third day, you are feeling that maybe you are not, maybe you can't do it. अब यार नहीं हो पा रहा है मुझसे, अब मुझसे मेहनत नहीं हो पा रही है. Now I can't give in more efforts. And I will say at this point, this is what your competitor wants. Because seats are very much limited, right? There are not n number of seats, okay? Seats जो हैं वो बहुत limited है ना. 2200 तो सीटें हैं, 2200 seats are there. And 2200 seats के लिए फाइट हो रही है roughly around 5K to 6K serious aspirants में, 5000 से 6000. तो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो तो यही चाहता है ना कि तुम गिव अप कर दो, तुम थक जाओ, तुम गिव अप कर दो. बट द कैच इज यहाँ पे एस्पिरेंट को दिस पर्टिकुलर थिंग विल नॉट हेल्प. व्हाट दे वांट टू नो इज कि मेरा सिलेक्शन इतने एफर्ट्स के बाद होगा कि नहीं होगा. तो गीता का वो श्लोक है, कर्म देह वादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन, तू कर्म करते चल फल की चिंता मत कर. बट ये भी बहुत आइडियलिस्टिक हमें लगता है. तो मैं आपको बता देता हूँ, बेंचमार्क कह सकते हैं या हम इसको लिटमस टेस्ट कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो 100+ ला रहे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका 30 मार्क्स आ रहा था और उनका भी सिलेक्शन हुआ है. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिनका 1 वीक पहले, एक हफ्ते पहले मॉक में स्कोर सिर्फ 30 था, सिर्फ 30 से 35 था. येट दे वर एबल टू स्कोर इन CLAT examination. So what is the benchmark or the litmus test? The benchmark or the litmus test is that if you are fluctuating between 60 to 70 marks, I would say remain hopeful. Remain hopeful, right? And if you are able to score 60 to 70 marks in your mocks, remain hopeful. एंड लेट्स से आपका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन जा रहा है तो प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिएगा. अगर आप इसको ऑलरेडी लगा चुके हैं, ऑलरेडी आप 2020 से लेके 2023 तक के 4 साल के पेपर लगा चुके हैं, तो वेल एंड गुड है. अगर आपने नहीं लगाया है तो प्लीज़, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ डू इट, प्लीज सॉल्व इट. कॉन्फिडेंस ईजी होगा बिकॉज क्लैट जो है वो एक डायरेक्ट पेपर है, इट्स अ डायरेक्ट एग्जामिनेशन. उसमें कुछ भी इनडायरेक्ट या कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, इट्स अ वेरी सिंपल पेपर, राइट. सो आपके मॉक में 60-70 मार्क्स के बीच में है, 50 भी होगा कभी कभी, फ्लक्चुएशन आएगा. सो लाइफ इज ऑल द मोर लाइक, सी, इट्स ऑल अबाउट अप्स एंड लोज. समडे यू विल फील वेरी मच एनर्जेटिक कि यार मेरे से ज़्यादा तो कोई तैयारी कर ही नहीं सकता है, मेरे से ज़्यादा तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है, कोई और तो
इतना कर ही नहीं पाएगा, एंड समडे यू विल फील लाइक यार वॉट एवर आई एम डूइंग इज नॉट इनफ. सो दिस इज द साइनोसाइडल कर्व ऑफ द लाइफ ऑल्सो, राइट. कभी आप अपने पेरेंट्स से भी बात करिएगा तो वो भी यही बात कहेंगे कि आज मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था तो खाना उन्होंने बहुत अच्छा मनपसंद का बनाया, और उनका मन नहीं कर रहा है तो फिर आपको फिर पूड़ी और आलू खाना के सोना पड़ा, या सिर्फ दाल चावल खा के सोना पड़ा. तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और ह्यूमन बीइंग्स में इमोशंस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं, एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि जिस भी दिन आपको एक एग्जामिनेशन को क्रैक करना है ना, तो आप ये सोचो कि 24 आवर्स कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटर जो है वो जग के मेहनत कर रहा होगा. जब तुम्हें रात को नींद आ रही है तो तुम ये सोचो कि कहीं तो कोई तो जग रहा है जो मेरी सीट मुझसे लेना चाहता है. आई थिंक दिस इज इनफ. जुनून के लिए इतना जानना काफी होता है कि अगर हम तैयारी नहीं कर रहे और सीट्स अगर लिमिटेड हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है, 70,000 बच्चे फॉर्म भरते हैं, 50,000 बच्चे पेपर में बैठते हैं, और एग्जामिनेशन देने जाने में भी हम मान लें कि 40,000 स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में एक्चुअली बैठते होंगे, तो उसमें सीरियस कैंडिडेट 50% तो होता ही होगा. 4,000 4,500 का फॉर्म तो कोई एवे नहीं भरता. तो 20,000 कैंडिडेट्स तो कहीं ना कहीं चाहते हैं सिलेक्शन करें. लेकिन 20,000 एस्पिरेंट्स बस चाहते हैं, उसमें से भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ 10% एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि सीरियसली एफर्ट्स डाल रहे थे. तो 2,000 बच्चे एफर्ट्स डाल रहे हैं, और उसमें भी कह सकते हैं कि 2,000 ये बच्चे हैं जो कोचिंग कर रहे हैं, बाकी 2,000 और भी हैं जो घर में बैठे हैं. तो कंपटीशन तो 4,000 लोगों में ही है. अब 4,000 लोगों में टॉप 500 का पोजीशन जो है वो आपको चाहिए. दैट इज द कैच, बिकॉज यू नो दैट टॉप 5 एन एल हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज एक कॉलेज में लेके चले तो 500 रैंक तक हम कह सकते हैं. जनरल कैटेगरी के हो तो ऑब्वियसली AR 500 के अंदर ही होना चाहिए. AIR 340 पे भी कभी कभी तो 7th 8th नंबर का कॉलेज मिलता है, बिकॉज जनरल कैटेगरी की सीट्स कुल मिला के 40-50 ही रह जाती है हर कॉलेज में. तो 50-50 रैंक पे कॉलेज चेंज होगा अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो. वरना 500 ही रहना है अगर अपना फ्यूचर बनाना है तो ये लड़ाई जारी रहने वाली है. दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप. दिस इज नॉट द टाइम टू फील सैचुरेटेड. दिस इज नॉट द टाइम टू फील दैट यू आर नॉट डूइंग एनफ, बिकॉज your actions were every day towards CLAT clearing, right? You wanted to clear this examination, and day one से जो सीरियस था ना, अच्छा ऐसा जादू नहीं होगा कि आज अचानक से कोई जागेगा और वो बोलेगा कि यार मैं क्लैट निकालना चाहता हूँ. तो डे वन से जो सीरियस था, जिसने एफर्ट्स पुट किए हैं उस तरफ, रिजल्ट उसी का होगा. रिजल्ट उसी का होगा, रिजल्ट में उसी का नाम होगा. जादू नहीं होता है डियर. इसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं. इसको हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं. नेचुरल जस्टिस क्या होता है? व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. सो व्हाट यू पुट आउट इन द न्यू यूनिवर्स, नो, व्हाट यू पुट आउट इन द न्यू यूनिवर्स, इट ऑल कम्स बैक टू यू. इट ऑल कम्स बैक टू यू. सो अगर आपने एफर्ट्स मारे हैं तो याद रखिएगा सिलेक्शन आपका होगा. अगर आपने एफर्ट्स नहीं मारे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा. तो हमारे हाथ में क्या है? व्हाट डू वी हैव इन हैंड? और एफर्ट्स ओनली. और एफर्ट्स. रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं है. अच्छा, मॉक में तुम्हारा 20 नंबर आ रहा है तो ये मॉक पेपर है, इट्स जस्ट अ मॉक एग्जामिनेशन. क्या ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मॉक्स डिसाइड कर सकते हैं कि क्लैट में क्या आएगा? नहीं कर सकते. नन ऑफ द मॉक पेपर्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन वर एबल टू प्रिडिक्ट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन क्लैट. इट वाज ओनली जीके. करंट जीके ही है थोड़ा हद तक, जहाँ पे भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से लार्जली 30-40% रिफ्लेक्शन ही होता है. बाकी सब गॉड्स विलिंग, जो भी पेपर में आपने मेहनत किया है, एग्जामिनेशन के उस दिन पे क्या माहौल है, बहुत कुछ उसकी वजह से होता है. बाकी सारे में तो मुझे नहीं लगता अभी तक मैंने कोई भी इंस्टीट्यूशन देखा है जो प्रिडिक्ट करके बैठा हो कि यार ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा और आ गया हो. ऐसा नहीं होता है ना एग्जामिनेशन में. तो इसीलिए यहाँ पे आप मॉक्स के मार्क्स को दिल पे मत लीजिए. रादर अगर मेरा 40 नंबर आया हुआ है तो मैं उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा यार. मैं समझूंगा कि मेरा 40 नंबर क्यों आया, और मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको ढंग से देता तो मेरा 60 नंबर कैसे आ सकता था. ये जो 20 मार्क्स का गैप हर बार हो रहा है, आखिरकार क्यों हो रहा है? वाई? और बस प्रॉब्लम ये है ना कि ये बहुत टाइम टेकिंग है. बस प्रॉब्लम ये है कि ये वाई ढूंढना ना, कि मेरे 20 नंबर कम क्यों है, बहुत टाइम टेकिंग है. और यहाँ पे एफर्ट्स के साथ साथ दो चीजें और चाहिए. एक तो डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि डिसिप्लिन व्यक्ति के अंदर इमोशन नहीं होता है. अच्छा बुरा ही डज नॉट केयर, ज्यादा कम समय ही डज नॉट केयर. डिसिप्लिन वाला है कि करना है तो करना है. एफर्ट्स के साथ साथ पेशेंस भी चाहिए, बिकॉज आपको रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा. जब आप ऑलरेडी उस 99.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हो तो 0.1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी कितना जलना पड़ेगा, तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारे आंसू आ रहे हैं, तुम टूट रहे हो, तुम बिखर रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम उस ब्रेक ब्रेक पॉइंट पे, थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच रहे हो। तो मैं कहूँगा कि दरवाजे, सक्सेस के दरवाजे पे खड़े होके नॉक नॉक किया, सक्सेस ने रिस्पॉन्स नहीं किया, तो खुद को सरेंडर मत कर दीजिए कि सीढ़ी के नीचे रोलिंग बॉल की तरह आ जाए। वहीं खड़े रहिए, जिद्दी हैं आप, खड़े रहिए वहां पे। नॉक नॉक अगेन, नॉक नॉक अगेन, नॉक नॉक अगेन। कैसे नहीं खुलेगा साला ये दरवाजा, कैसे नहीं होगा हमसे? मैं बस इसीलिए कह रहा हूँ कि अब वो जैनिज्म का डॉक्ट्रीन है, मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ दैट राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। हमारे पास, हमारे हाथ में सिर्फ ये है, राइट एक्शन ही है, और उसके लिए हमारे पास 40-45 दिन बाकी, 40 to 45 days। सो दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। आई डोंट वुड नॉट से कि आप इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच के गिव अप कर दें। apparently this is what other people want, and you are just giving them one reason, one reason to not to trust you again, one reason to tell you again that you were not enough, one reason that तुम आगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। डोंट गिव दैट रीजन, डोंट मेक इट सो इजी फॉर देम, राइट? खुद से अपने जिंदगी में अपनी चीज़ों को दूसरों के हाथ में मत रख दो जाके। जो जगह तुम्हारी है वो तुम्हारी ही होनी चाहिए। जहाँ तुम खुद को देखते हो वहाँ सिर्फ तुम होने चाहिए, और कोई का औकात नहीं है कि वो उस जगह को तुमसे ले ले। समझ में आया? हमारे मन के अंदर एक सवाल ज़रूर उठता है हमारे एफर्ट्स के लिए, लेकिन अंदर से सवाल उसी के बच्चे के मन में उठता है जिसको लगता है कि यार उसने कुछ उखाड़ा है, उसने कुछ किया है, उसने एफर्ट्स लिए। बिकॉज फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन भी उसी को होगा जिसने तैयारी की है। जिसने कोई तैयारी नहीं की है वो बस परेशान होता है, क्या कर लूँ मैं, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट हर चीज़ का नहीं होता है लाइफ में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला। तो कोयला काला है, चट्टान उसको पालती है, प्रेशर में रहता है ना? ये सब दकियानुसी बातें हैं, मुझे लगता है फालतू का मोटिवेशन होता है, ये सब सुन सुन के बड़ा वाइब आता है, पर वो मोमेंट्री रहता है। क्योंकि एक एग्जामिनेशन में जब आप बैठ रहे हो तो यू गॉट टू बी रूथलेस, यू गॉट टू बी इमोशनलेस, बिकॉज इट्स लाइक अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। आपको आपका जगह बनाना भी है, साथ में आपको 10 लोग को किक आउट भी करना है उस कंपटीशन से। तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा। आप रो नहीं सकते, आप परेशान नहीं हो सकते, यू कैन नॉट क्रिब अबाउट इट, क्राई अबाउट इट। यू गॉट टू पुट इन द एफर्ट्स, एंड एफर्ट्स आर लाइक the only thing that I have seen apparently every time when I sit with mocks or past a paper of CLAT is that it demands a lot of patience, and hats off to you kids that तुम लोग कोशिश भी करते हो इस जगह पे यार, कि यार एक एक घंटा वो साढ़े साढ़े पैसेजेस को पढ़ के आंसर, पढ़ के आंसर। बट आई वुड से एट लास्ट देखो, अगर कुछ भी ना करो ना, तो ये पोमोडोरो टेक्निक है, 25 मिनट्स की टेक्निक है। 25 मिनट बस 6 पैसेज सॉल्व करो, 25 मिनट 6 पैसेज सॉल्व करो, आराम से 5 मिनट का ब्रेक लो, टेक अ 5 मिनट का ब्रेक, राइट? घर पे हो, 5 मिनट का ब्रेक लो, गिन के फिर वापस से 25 मिनट बैठो, फिर से 6 पैसेज सॉल्व करने का कोशिश करो, और फिर आराम से 10 मिनट का ब्रेक लो। भाड़ में जान दो साले, ठीक है? आराम से 10 मिनट का ब्रेक लो, और फिर 25 मिनट, एक आखिरी बार और 25 मिनट डियर बैठ जाओ, और 6 पैसेज और सॉल्व कर लो, और फिर सो जाओ, गो टू स्लीप। क्या नंबर आए, कितना सही कितना गलत, बस इतने लिख लो कि इतने अटेम्प्ट किए हमने टोटल। 25, 25, 25 मिनट में हमने कितने अटेम्प्ट किए, हमारे कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, ये ऐसा एक टेबल बना लो, ठीक है? और करेक्ट की संख्या जो भी रहे अगले दिन उसमें +2 होना चाहिए, और इनकरेक्ट में -2 होना चाहिए। बस ये छोटा सा आपको काम अगले 45 दिन करना है। जो भी बच्चा गिव अप कर रहा है, परेशान हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है, फॉर द नेक्स्ट 45 days जस्ट डू दिस। एंड रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप। तुम्हारे कॉम्पिटिशन्स, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुमसे वही चाह रहे हैं। और मेरी प्रोफेसी जो है, वो प्रोफेसी नहीं है, वो एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, कि सबकी मुलाकात अक्टूबर में होती है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में ना पढ़ने वाला भी पढ़ रहा होता है, और पढ़ने वाला तो खैर पढ़ ही रहा था। तो अगर आप ए कैटेगरी में हैं तो याद रखिए आप नीचे गिर रहे हैं। अपेरेंटली अब जो आप एक्शन लेंगे वही आपको ऊपर लेके जाएगा। अगर आप बी वाले कैटेगरी में हैं, बी वाले कैटेगरी में हैं जो कि शुरुआत से मेहनत नहीं कर रहा था,
उसको अभी भी कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है पर वो मेहनत कर रहा है, तो याद रखिएगा आप बाकी एस्पिरेंट्स के बराबरी में हैं, आपके लिए भी उम्मीद बाकी है। ऑब्वियसली ये कैंडिडेट ए विल ऑलवेज बी अबव बी, ए के चांसेस हमेशा बी से ज़्यादा रहेंगे, बट बी जो है स्टिल कैन मेक इट। एटलीस्ट उसको 500 नहीं मिलेगा तो 500 फर्स्ट जो होगा वो मेरा नाम होगा, ऐसा सोच सकते हैं। और जो सी कैंडिडेट है सबसे चिल है लाइफ में, और ये एक रेयर ब्रीड है जो अपने मन के अंदर समुंदर लेके बैठी रहती है। समुंदर जितना गहरा है उतना ही शांत भी। तो ये वाले बच्चे बहुत रेयर होते हैं और ये बहुत मेच्योर बच्चे होते हैं, बहुत मेच्योर, जो अपनी ज़िंदगी को एक एग्ज़ाम के ऊपर देख रहे होते हैं, जिनको पता है कि एक एग्ज़ाम मेरे लाइफ का फेट नहीं डिसाइड कर सकता। ये एग्ज़ाम मेरे लिए प्रेस्टिज इशू नहीं है, मेरी चाहत है, मेरी मोहब्बत है, मैं चाहता हूँ मैं इस एग्ज़ाम को निकाल लूँ। बट दिस इज एग्जामिनेशन इज़ नॉट अबाउट प्रेस्टिज, दिस एग्जामिनेशन इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड माई एंटायर लाइफ। तो ये एक बच्चा, ये एक एस्पिरेंट बहुत मेच्योर लेवल पे बैठा है, एक बहुत ही अलग जोन में जा चुका है। दैट इज वाई इस उम्र में, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, दिस पर्टिकुलर ट्रेट इज वेरी रेयर टू फाइंड, येट आई हैव एनकाउंटर्ड किड्स लाइक दैट। मैं अपने एग्जामिनेशन टाइम पे जब मैं था तो मैं ए कैटेगरी में बिलोंग करता था, आई वॉज नेवर द बी कैटेगरी। नाउ आई एम द बी कैटेगरी एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर फ्रेंड्स हु आर इन द ए कैटेगरी, जो कि मुझे बता सके, जिनको मैं देख के चेस कर सकूं। somebody always there should be to chase, to look up to. But I would say, having there been there in the A category, and now sitting on the B category, I can say nothing else matters till the time you're taking positive efforts towards this examination. याद रखिए, what goes around comes around is the rule of law, is the rule of nature. आप जो भी एनर्जी बाहर छोड़ते हैं वो आपको वापस आएगी। आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे, इनपुट करेंगे, उसका आउटपुट आएगा ही आएगा, ये मशीन का भी लॉ है। तो बस एफर्ट्स जब आपके हाथ में है, नथिंग एल्स, तो बी रूथलेस, बी इमोशनलेस, एंड कीप फाइटिंग, जस्ट फाइट इट हार्ड, डोंट मेक इट इजी। अपनी सीट को सरेंडर करना ही है तो यार खूना खच्चर करके करेंगे, इतने आसानी से आइए बैठिए ले जाइए वाला हिसाब नहीं करेंगे। मतलब कतरा कतरा जो है ना, लहूलुहान हो जाएंगे, पर साला सीट नहीं छोड़ेंगे अपनी। ऐसे तो नहीं बैठने देंगे किसी को अपनी जगह पे। इस टेम्परामेंट के साथ आगे बढ़िए, मन के अंदर गुस्सा आएगा, अपने गुस्से को चैनलाइज करिए, फोकस करिए, एंड डेफिनेटली आप इस बार क्लाट निकाल लेंगे। बट याद रखिएगा, 45 days, दिस इज नॉट द टाइम टू गिव अप, नॉट एट ऑल, नो।